नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर 15 किलोमीटर लंबा जाम, जगह जगह टूटी सड़कों से फंसे हजारों वाहन चालक। गुजरात में आपको बड़ा झटका, नाराज विधायक उमेश मकवाना पार्टी से सस्पेंड। और वडोदरा में गड्ढों से भरी सड़कें दुर्घटना को दे रही हैं न्योता, टूटी फूटी सड़कों से वाहन चालक परेशान। आज सुबह वडोदरा के पास अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे पर बड़ा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। वडोदरा के पास अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे पर जाम्बुआ ब्रिज, पोर ब्रिज और बामणगाम ब्रिज के पास खराब सड़कों और बारिश के कारण बने गड्ढों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सड़क की खराब हालत और बड़े बड़े गड्ढों के कारण आज सुबह भारी ट्रैफिक जाम लग गया। ये जाम करीब 15 किलोमीटर लंबा था। ट्रैफिक जाम की शुरुआत सुबह होते ही हो गई, जिससे हजारों वाहन फंस गए। काम पर जाने वाले, अस्पताल जाने वाले और जरूरी काम से निकले लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। इस जाम में 5 एम्बुलेंस भी फंस गई थीं, जिससे मरीजों की जान पर बन आई। आसपास के हाउसिंग सोसाइटी के लोग भी भारी परेशानी में रहे, क्योंकि उन्हें रोजाना की जरूरतों के लिए भी बाहर निकलने में दिक्कत हुई। गुजरात की राजनीति में पैर जमाने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी के विधायक उमेश मकवाना ने एक और झटका दिया है। ये बातें तो पिछले कई दिनों से उठ रही थी कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के बोटाद के विधायक उमेश मकवाना पार्टी से नाराज चल रहे हैं। पार्टी से इस्तीफा दिए जाने तक की बात भी सामने आई, लेकिन आज उन्होंने मीडिया के सामने दंडक पद से और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव पद से इस्तीफा दिया और विधायक पद से इस्तीफा देने पर फिलहाल सस्पेंस बनाए रखा है। 2020 પહેલા હું ભારતીય જનતા પાર્ટીનો એક કાર્યકર્તા તરીકે કામ કરતો હતો અને ભારતીય જનતા પાર્ટી છોડી અને આમ આદમી પાર્ટી 2020 માં મેં જોઈન કરી પછી અલગ અલગ પદ ઉપર હું સેવા આપી। છેલ્લે 2022 માં બોટાદથી વિધાનસભાની ચૂંટણી લડ્યો। બોટાદની જનતાએ મને મારી ઉપર ભરોસો રાખી અને બોટાદનો ધારાસભ્ય પણ બનાવ્યો। ત્યાર પછી આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા વિધાનસભાનો દંડક પણ બનાવવામાં આવ્યો, રાષ્ટ્રીય જોઈન્ટ સેક્રેટરી પણ બનાવવામાં આવ્યો। અલગ પદ ઉપર 5 વર્ષની અંદર આમ આદમી પાર્ટીના અનેક હોદ્દાઓ પર સેવા આપી। પણ ક્યાંક ને ક્યાંક તમે જોયું હશે કે જ્યારે પછાત સમાજની ગુજરાતની જનતાનો અવાજ ઉઠાવવાની વાત આવે, કોળી સમાજની જ્યારે વાત કરવામાં આવે ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક દરેક પાર્ટીમાં ખૂટતું જણાતું। ખાસ કરીને જ્યારે ભાજપમાં હું હતો ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી એમાં પણ તમે જોયું છે કે જ્યારથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ગુજરાતમાં કે દેશમાં ઉદય થયો ત્યારથી લઈને આજ સુધીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી પછાત સમાજનો કે કોળી સમાજનો એક પણ આજ દિવસ સુધી મુખ્યમંત્રી બનાવવામાં નિષ્ફળ નીવડી છે। મુખ્યમંત્રીની વાત તો છોડો, પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી પછાત સમાજનો પ્રદેશ પ્રમુખ પણ ઠાકોર સમાજનો, કોળી સમાજનો બનાવવામાં પણ નિષ્ફળ નીવડી છે। ક્યાંક ને ક્યાંક અંશે કોંગ્રેસ છેલ્લા 25-30 વર્ષથી સત્તાની બહાર છે, પણ તેમ છતાંય આજે પછાત સમાજના લોકોનો અવાજ પણ કોંગ્રેસ બની નથી શકી। એટલે કોંગ્રેસ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આજે પછાત સમાજની જે વાત જ્યારે આવે, કોઈ સમાજની જ્યારે વાત આવે ત્યારે એનો વિપક્ષની તરીકે ભૂમિકા જે ભજવવાની જે ભૂમિકા હોય એ પણ કોંગ્રેસ પણ આ ગુજરાતમાં ક્યાંક ને ક્યાંક અંશે ઊંડી ઉપડી છે। એવી જ રીતના જ્યારે હું જે આશાએથી આમ આદમી પાર્ટી મેં સંગઠનમાં જે અલગ હોદ્દાઓ જ્યારે ઉપર સેવા આપી રહ્યો હતો ત્યારે પણ મને આજે ખુદને એવો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે કે આમ આદમી પાર્ટીમાં પણ સૌથી વધુ પછાત સમાજની ગુજરાતમાં વસ્તી છે, ઓબીસી સમાજની છે, કોળી સમાજની છે, મારા ઠાકોર સમાજની છે। ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક મુદ્દા જે સમાજના ઉઠાવવામાં હોય ત્યારે પાર્ટી તરફથી ક્યાંક ઉણપ થાય છે। હોદ્દા, ઉચ્ચ હોદ્દા આપવાની જ્યારે વાત કરવામાં આવે ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક સુવર્ણ સમાજને હોદ્દા આપવાની વાત કરવામાં આવે છે। ચોક્કસપણે મેં તમને કીધું આગામી ટૂંક જ સમયમાં
ગુજરાતના અમારા જે પછાત સમાજના નેતાઓ છે એની સાથે ટૂંક જ સમયમાં મારી મીટિંગ ગાંધીનગર ખાતે જ મળવાની છે. ત્યારે ઉમેશ મકવાણા આગામી સમયમાં અપક્ષ લડશે કે નવી પાર્ટી બનાવીને લડશે ત્યારે હું મીડિયાના મારફત આપને જણાવીશ. એ મારી બોટાદની જનતાને હું પૂછીશ, ત્યાં મારી બોટાદની જનતા વચ્ચે જઈશ, એટલે મારી બોટાદની જનતાએ મારી ઉપર ભરોસો મૂકી અને મને પદ આપ્યું છે. હું મારી બોટાદની જનતાને અધવચ્ચે રઝળી જાય એવું કોઈ કાર્ય કરવા માંગતો નથી. ઘણા બધા મારા આમ આદમી પાર્ટીના જે પદાધિકારી છે એની સાથે ચર્ચા વિચારણા થઈ હતી, ઘણા સાથે મારે વાત પણ થયેલી છે. આ હું રાજીનામું માત્ર ને માત્ર પદ ઉપરથી આપું છું. આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તા તરીકે પહેલા પણ ચાલુ હતો, આજે પણ હું ચાલુ છું. वहीं इस मामले गुजरात आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी ने ट्वीट कर उमेश मकवाना को पार्टी विरोधी गतिविधि करने पर 5 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। बोटाद के हमारे विधायक उमेश मकवाना के खिलाफ बार बार भ्रष्टाचार की फरियादें आ रही थी, बार बार उनके खिलाफ जनता की फरियादें आ रही थी। वो बोटाद में कम गांधीनगर में ज्यादा रहते, बार बार उनको जब बताया जा रहा था तब भाजपा को पता चला तो भाजपा ने उनको साध लिया और भाजपा ने जिस तरह से गंदी राजनीति शुरू की है, भाजपा ने विसावदर में जब भाजपा चुनाव हारी तो भाजपा इतनी बौखला गई है कि उन्होंने फिर से उमेश मकवाना के थ्रू पार्टी के विरुद्ध, आम आदमी पार्टी के विरुद्ध एक्टिविटीज करवानी शुरू की है। इसलिए पार्टी माननीय अरविंद केजरीवाल जी और शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है कि पार्टी विरोधी और जनता विरोधी जो भी कदम उठाएगा उसके खिलाफ पार्टी सख्त कार्यवाही करेगी और उसके चलते उमेश मकवाना जी को जनता विरोधी और पार्टी विरोधी प्रवृत्तियों के करने के चलते 5 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड किया जा रहा है। और मैं उमेश मकवाना जी को और भाजपा को चैलेंज देता हूं कि अगर हिम्मत है तो आप विधायक पद से इस्तीफा देकर बोटाद से फिर से चुनाव जीतकर बताइए। बोटाद की जनता से बार बार ये कंप्लेनें आ रही थी, भ्रष्टाचार की फरियादें आ रही थी, बार बार उनको सूचित किया गया है कि आप जनता के बीच रहिए, आप जनता का काम करिए। बार बार उनके खिलाफ पुलिस थाने में भी अर्जी गई है, मेरे पास भी आई है कि इतनी कंप्लेन है। तो भाजपा इस तरह की गंदी राजनीति बंद करे, सामने ताकत हो तो सामने से लड़ो। आप तहसील पंचायत में तो चुनाव जीत नहीं सकते हैं, आपने मंत्री के बेटे हो चुनाव हार चुके हैं। इसलिए भाजपा को भी मैं चैलेंज देता हूं कि आओ बोटाद में उपचुनाव कराओ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जीत कर दिखाओ। वडोदरा में बारिश के साथ ही एक बार फिर शहर की सड़कें खस्ताहाल हो चुकी हैं। खुले ढक्कन से लेकर गहरे गड्ढों तक हर कोना खतरे की घंटी बजा रहा है। यह है वडोदरा का शास्त्री ब्रिज। यहाँ से नजदीक पॉलिटेक्निक कॉलेज गेट के सामने एक मैन हॉल का ढक्कन टूट चुका है। इस व्यस्त मार्ग से गुजरते समय अगर किसी वाहन का टायर उस पर चढ़ जाए तो बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल ये है कि क्या पालिका और प्रशासन किसी हादसे के बाद ही जागेंगे। वहीं कारेलीबाग में मुक्ताना 4 रास्ता से मेंटल हॉस्पिटल की ओर जाने वाली सड़क बारिश के कारण गड्ढों में तब्दील हो गई है। आज कॉरपोरेशन की टीम यहां डामर लाकर पेच वर्क कर रही थी, लेकिन डिवाइडर की दूसरी ओर सड़क नहीं बनाई जा रही थी। जब इस मामले उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो दूसरा वार्ड लग जाता है, यानी गड्ढा वार्ड देखकर भरा जाएगा, ना कि सड़क की हालत। चकली सर्कल से नटूभाई सर्कल तक की सड़क की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं है। चकली सर्कल से नटूभाई सर्कल जाने वाली सड़क अब खड्डों का सफर बन गई है। हर 2 कदम पर गड्ढे और हर गड्ढे पर उछलती गाड़ियां, जिससे लोगों ने अब तंज कसना शुरू कर दिया है कि ये वडोदरा है कि खड़ोदरा। सवाल अब ये है कि क्या कॉरपोरेशन सिर्फ जवाब देने के लिए बैठा है या जिम्मेदारी निभाने के लिए भी। जब शहर की मुख्य सड़कें ही ऐसी हो तो आम जनता की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा, ये बड़ा सवाल है। गुजरात के वडोदरा में व्हेल मछली की उल्टी यानी एम्बर ग्रीस की तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वडोदरा में व्हेल मछली की उल्टी यानी एम्बर ग्रीस की तस्करी करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी आरोपी कार में सवार होकर इसे बेचने की फिराक में थे। पुलिस ने करीब 1.65 करोड़ रुपए का माल जब्त किया है, जिसमें 1.58 करोड़ की एम्बर ग्रीस शामिल है। वडोदरा शहर पोलीस कमिश्नर श्री नरसिम्हा कोमर साहेब ने सूचना और मार्गदर्शन मुजब वडोदरा शहर में गुनाहित प्रवृत्ति अटकावा माटे सूचना मळेल जे आधारे
એલસીબી ઝોન 2ના જે માણસો છે એ પેટ્રોલિંગમાં હતા એ દરમિયાન એમને માહિતી મળેલ કે અટલાદરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલ બિલ કેનાલ રોડ પર ધ માર્ક કોમ્પ્લેક્સના ગ્રાઉન્ડમાં કેટલાક માણસો સ્વિફ્ટ ડિઝાયર ગાડી જેનો નંબર GJ06PN 384માં વ્હેલ માછલીની ઉલટી એને એમ્બર ગ્રીસ નામનો પદાર્થ શંકાસ્પદ રીતે વેચાણ કરવાના ઈરાદે ફરે છે તેવી માહિતી મળેલ, જે આધારે એલસીબી ઝોન 2ના માણસો દ્વારા જે માણસો હતા એમની વિરુદ્ધ અટલાદરા પોલીસ સ્ટેશનમાં કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી અને આગળની તપાસ હાલમાં ચાલુ છે. એમાં ફોરેસ્ટ ઓફિસર અને FSL ને સાથે રાખી અને એ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે અને એ જે પદાર્થ છે શંકાસ્પદ એને FSL માં અને તપાસની અર્થે મોકલવામાં આવેલ છે. એ વ્રજ દવે નામના માણસ લઈને આવેલો એવી માહિતી અત્યારે મળેલ છે, જે બાબતે હાલમાં તપાસ ચાલુ છે. એ તપાસ ચાલુ છે હાલમાં. એ જે મુખ્ય લાવનાર જે માણસ છે હજી પકડાયેલ નથી, એ પકડાય પછી આગળની મુદ્દામાલમાં છે આ જે એમ્બર ગ્રીસ નામનો પદાર્થ 5 કિલો અને 292 ગ્રામ, જેની કિંમત છે 1,58,76,000. પછી 6 મોબાઈલ છે અને એક સ્વિફ્ટ ડિઝાયર ગાડી છે. એ દિશામાં હાલમાં તપાસ ચાલુ છે. એ તપાસ દરમિયાન ખ્યાલ આવશે. એનો ઉપયોગ છે જે અત્તર જે છે એને બનાવટમાં અને ચાઇનીઝ દવાઓમાં બનાવટમાં उपयोगમાં લેવામાં આવતું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला 28 घंटे का सफर तय कर स्पेस स्टेशन पहुंच गए हैं। शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट आज यानी 26 जून को शाम 4:01 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए। करीब 28 घंटे के सफर के बाद वे ISS पहुंचे हैं। अब कुछ देर में स्पेस स्टेशन का हैच खुलेगा और ये सभी एस्ट्रोनॉट ISS के अंदर दाखिल होंगे। शुभांशु ISS पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे 41 साल पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेस क्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। इससे पहले मिशन क्रू ने स्पेस क्राफ्ट से लाइव बातचीत की। इसमें शुभांशु ने कहा था, नमस्कार फ्रॉम स्पेस, यहाँ एक बच्चे की तरह सीख रहा हूँ अंतरिक्ष में चलना और खाना कैसे है। एक्सियम मिशन 4 के तहत 25 जून को दोपहर करीब 12 बजे सभी एस्ट्रोनॉट ISS के लिए रवाना हुए थे। ये मिशन तकनीकी खराबी और मौसमी दिक्कतों के कारण 6 बार टाला गया था। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats, connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलिशान अपार्टमेंट। यहाँ बना है आपके सपनों का घर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ। मल्टीपर्पज हॉल, AC जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग,
सीसीटीवी जैसी कई एमिनिटीज। मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास। मलबेरी हाइट्स, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 971293 32205। होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. गुजरात के वडोदरा में कल निकलने वाली भव्य रथ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। वडोदरा में हर साल जगन्नाथ भगवान जी की रथ यात्रा भव्य रूप से निकलती है, जिसमें हजारों भाविक भक्त शामिल होते हैं। रेलवे स्टेशन से पोलो ग्राउंड तक निकलने वाली इस रथ यात्रा में भीड़ भाड़ में किसी भी तरह की अप्रिय घटना न घटे, इस बात को सुनिश्चित करने हेतु वडोदरा पुलिस ने आज रथ यात्रा रिहर्सल की। इस रिहर्सल में पुलिस कमिश्नर अनुपम गहलोत, ज्वाइंट कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी और अन्य पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने रूट पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और जरूरी निर्देश भी दिए। सैकड़ों की संख्या में पुलिस जवानों, ट्रैफिक पुलिस, एसआरपी और आरएएफ की टीमों ने इस रिहर्सल में हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए जगह जगह नाकेबंदी की गई है और संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखी जाएगी। कल श्री जगन्नाथ रथ यात्रा निकलने वाली है, उसका परिप्रेक्ष्य में वडोदरा शहर पुलिस डिटेल्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट की है। इसके भाग रूप में वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और अदर स्टेक होल्डर डिपार्टमेंटों के साथ हमने डिटेल्ड सिक्योरिटी प्लान को अमल में रखा है। तो कल जब श्री जगन्नाथ शहर यात्रा में निकलेंगे, एक एडिशनल सीपी, 9 डीसीपीज, 13 एसीपीज और 1000 से भी ज्यादा सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल्स और 3 कंपनी एसआरपीएफ और 1000 से ज्यादा होमगार्ड और मंदिर की तरफ से 700 वॉलंटियर्स भी होंगे। तो संकलित प्रयास से कल ये बंदोबस्त को संपन्न किया जाएगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी इस बार फिर से प्रयास किया हमने। समग्र मार्ग रूट पे जितने भी पब्लिक प्राइवेट कैमरास हैं, जहाँ स्ट्रेटेजिक लोकेशन में जरूरत है उधर बॉडी ऑन कैमरा, आकाश से भी इसका व्यू लेने के लिए ड्रोन कैमरा सिस्टम और लोकेशनल डिटेल्स के लिए जीपीएस सिस्टम को उपयोग करके इसका मूवमेंट को लाइव मॉनिटर किया जाएगा और सुरक्षा के सभी इंतजाम टेक्नोलॉजी की मदद से और सुदृढ़ किया जा रहा है। तो मेरे को विश्वास है कल निकलने वाले श्री जगन्नाथ रथ यात्रा एक शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होगी। जो शहरजनों से हम अपील करना चाहते हैं कि ट्रैफिक का डाइवर्शन के लिए हमने जाहिरनामा प्रसिद्ध किया है, उसके तहत आप ध्यान रखो। जब आपका बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जाने को हो, आप टिकट फ्लैश करके एक्सेस दे सकते हो और कोई इमरजेंसी भी हो, डायल 100 या 112 के माध्यम से आप उसमें पुलिस का सहायता ले सकते हो। जब आप इस रथ यात्रा दर्शन के लिए आते हो तब आप मिनिमम बैगेज रखिए, वरिष्ठ नागरिकों का, महिलाओं का, बालकों का सुरक्षा का भी ख्याल रखिए और कोई भी जगह पे भीड़ भाड़ भरी परिस्थिति उपस्थित ना हो उसका ध्यान रखिए ताकि स्टैम्पेड जैसा सिचुएशन के लिए स्कोप ना रहे।
पुलिस का मार्गदर्शन और सूचना का पालन कीजिए। खुद का सुरक्षा के लिए आप अन्य विभागों के साथ साथ ही नागरिकों के साथ सहकार दें। तो मैं मानता हूँ कल का जो रथ यात्रा है एक शांतिपूर्ण माहौल में, सुरक्षित वातावरण में संपन्न। गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री रिवाइवल के पीछे खर्च किए गए 1200 करोड़ बारिश के पानी में धुलते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में पिछले 3-4 महीनों से विश्वामित्री रिवाइवल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, जिसके तहत 1200 करोड़ रुपए खर्च कर विश्वामित्री को गहरा और चौड़ा किए जाने का दावा किया गया है। विश्वामित्री की सफाई के नाम पर नदी किनारों की मिट्टी को खोद दिया गया है, जिससे किनारे के पेड़ पौधे बहकर नदी में समा रहे हैं। कमाटी बाग के झूलते पुल के आसपास का ये हिस्सा है जहां बड़े पैमाने पर मिट्टी विश्वामित्री के जल प्रवाह के साथ बह जा रही है। नदी के पानी के साथ नारियली और ताड़ जैसे बड़े बड़े पेड़ भी नदी में समा रहे हैं, जिससे नदी के आसपास के पर्यावरण को तो नुकसान हो ही रहा है, नदी के आसपास की मिट्टी भी पानी में धुल रही है। विश्वामित्री હતી પહેલા એ પાણી બહુ જતું રહ્યું, પણ અત્યારે ખોદકામ કરી માટી કઈ લઈ ગયા ના ઝાડ પેડ તાળના ઝાડ હતા 4 પડી ગયા, આ બાજુ એક બગ પડી ગયું અને 2 પડવાની તૈયારી છે। જમીન બરાબર સાફ સુફ કરી નહીં અને કોઈ નેટ નાખી હોત તો થોડી માટી દબાઈ રહેત અને ખસત નહીં, એનું આટલું કહેવાનું હતું। પણ હવે પૈસા કોને ખબર 12 લાખ કરોડ રૂપિયા ગયા, શું કરવાના આપણે? એ પબ્લિક ગયા ને, પબ્લિક ના ગયા તો પાણી તેનું તે રહેવું છે, સિટીમાં પહેરી જવું છે। આ તો આટલો નહીં જેવો વરસાદ પડ્યો, આટલું ધોવાઈ ગયું છે, વધારે પડશે તો એની હાલત શું થશે? એ તો સરકારને પૂછવું પડે આપણે કેવું કામ કર્યું તમે। નુકસાન તો ખરું, પાણી રોકાતું હોય અને પાણી ખાઈ જતું હોય અને મૂળ પકડી રાખતા જમીનના મૂળ એ પકડી રાખતા એટલે ઓછું થતું ધોવાતું। પણ અત્યારે આટલું બધું ખોદકામ કર્યું પણ બધું સાફ થઈ ગયું છે, જે માટી ચડાય બધી ધોવાઈ ગઈ છે। वडोदरा शहर को बाढ़ से बचाने के लिए विश्वामित्री की सफाई के पीछे 1200 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अगर विश्वामित्री की सफाई के बाद नदी की आसपास के पर्यावरण को नुकसान होता है तो ये वडोदरा शहर के लिए और भी घातक बन सकता है। अभी हम ये कमाटी बाग पे के झूलता पुल पर हम खड़े हैं और जिस तरह से जो नज़ारा दिख रहा है विश्वामित्री का, और ये लोगों ने जिस तरह से खोदकाम किया और जो प्रॉपर जो कामगिरी करना चाहिए था साइड से वो किया नहीं, और उसकी वजह से बहुत से ऐसे पेड़ है जो पानी में बह रहे। मेरी एक ही बात कहनी है कि 1200 करोड़ कोई छोटी रकम तो है नहीं, और जिस तरह से हमको प्लानिंग करना हाईटेक है, अब हमारे पास मशीनरीज है, तो क्यों ना हम अच्छे से प्लानिंग करें। आज जिस तरह से लोगों ने खोदकाम किया, अभी हम देख रहे हैं कि जितनी जो मिट्टी है सब मिट्टी बह रही है। इसका रीजन ऐसा है कि आने भविष्य में ऐसा तो लग रहा है कि हो सकता है लोगों के घर में भी पानी घुस जाए। मतलब जो विश्वामित्री किनारे जो प्रॉपर जो बांधकाम होना चाहिए, जो साइड से जो उनको नेट लगा करके जो प्रॉपर कामगिरी करना चाहिए था, वो कामगिरी यहाँ पे हुआ नहीं, और उसकी वजह से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो बारिश की शुरुआत हुई है, आने वाले समय में अगर जो ऐसे बारिश चलता रहा तो हो सकता है कि विश्वामित्री के किनारे की जितनी भी मिट्टी है बह जाएगी और लोगों के घर में वापस पानी घुस जाएगा और वही बड़ौदा में वापस बाढ़ आएगी, ऐसा दिख रहा है। मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह से इन लोगों ने खोदकाम किया और जिस तरह से जहां पर पेड़ थे, ठीक है ना, तो वहां पे इनको प्रॉपरली नेटिंग लगा करके उसको प्रॉपर मतलब उसको ऐसा एक वॉल टाइप जैसा करना चाहिए था कि जिससे दूसरी मिट्टी भी न बहे। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा हुआ कि 10 जेसीबी लगा दिए, मिट्टी खोद दी, सरकार का पैसा आया है, लोगों को दिखाने के लिए हम तो विश्वामित्री को चौड़ी कर रहे हैं, बस ऐसा ही काम ये लोगों ने किया है। ये जो यहाँ पे कामगिरी दिख रही है, हम जब से कामगिरी तब से देख रहे हैं कि बहुत से जेसीबी लग रहे हैं, जेसीबी मिट्टी खोद रही है और मिट्टी कहीं और जा रही है, ठीक है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जिस तरह से प्लानिंग करके जो प्रॉपर कामगिरी होनी चाहिए थी वो कामगिरी यहाँ पर हुई नहीं है। अभी हम देख सकते हैं कि अभी जो विश्वामित्री का पट है वो दिन ब दिन अभी बढ़ते जा रहा है। अभी तो खाली शुरुआत है बारिश की, अगर ऐसे जो बारिश हुआ तो हो सकता है कि ये कमाटी बाग में भी पानी घुस जाएगा और बहुत से ऐसे जो पेड़ है वो पेड़ भी पानी में बह जाएंगे। आज हम पर्यावरण को बचाने की बात कर रहे हैं लेकिन हम पेड़ को संभाल नहीं सकते, ये चीज यहाँ पर दिख रही है। गुजरात के अहमदाबाद में कल निकलने वाली भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से पहले सभी तरह की तैयारियों को आखिरी अंजाम दिया जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में हर साल बहुत ही भव्य रूप से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। इस मौके पर बहुत बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को और भी कड़ा कर दिया गया है। खास तौर पर बेंगलुरु में हुई भगदड़ और 12 जून को हुए विमान हादसे के बाद पुलिस और भी ज्यादा अलर्ट मोड पर है। ड्रोन और एआई तकनीक की मदद से अहमदाबाद के रूट्स पर
निगरानी की जानी है। भगवान जगन्नाथ मंदिर की जो रथ यात्रा निकल अभी भी कुछ ही घंटे बाकी है, तो यहाँ पे आज ये बार क्राइम ब्रांच ने बहुत अच्छा काम किया है। क्राइम ब्रांच ने जो ड्रोन के हिसाब से एक नया एआई के जरिए एक नया ड्रोन लेके आया है कि जिसके अंदर से पता चल जाएगा जो लास्ट टाइम पिछले दिनों में बेंगलोर में जो स्टैम्पेड हुआ था, जिसके कारण तकरीबन 10-11 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ऐसा कोई भगदड़ नहीं हो, इसके कारण क्राइम ब्रांच ने एक अच्छा एक कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी का डेवलप किया है कि जिससे उनको पता चल जाएगा कि कोई भी जगह पे स्टैम्पेड होने वाली है तो उनका वो ड्रोन कनेक्ट जो कम से कम 35 से 40 ड्रोन है वो सीसीटीवी के साथ कनेक्ट होकर के उनको पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो 50 की क्षमता है उससे 55 जगह ज़्यादा हो रही जगह तो ब्लिंक हो जाएगा। तो वैसे क्राइम ब्रांच को पता चल जाएगा तो वो जो क्राइम ब्रांच है वहाँ से जो भीड़ है वहाँ से कम कर देगी। तो कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच का जो टेक्नोलॉजी है कहीं ना कहीं सराहनीय वाली बात है। अहमदाबाद की जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत खास तरह से मनाई जाती है, जिसमें सुबह से शाम तक जगन्नाथ जी की पूजा की जाती है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद अर्पण किया गया है। कल अहमदाबाद में 148वीं रथ यात्रा ऐतिहासिक रथ यात्रा निकलने जा रही है। तो आप जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा भी यहाँ पे प्रसाद भेजा गया है। जो टाइम पे वो अहमदाबाद के गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी भी उनके द्वारा ये प्रसाद यहाँ जगन्नाथ मंदिर भेजा जाता था। आज भी वो परंपरा उन्होंने बरकरार रखी है जो इनके प्रतिनिधि के द्वारा यहाँ पे प्रसाद भेजा गया है। और ये जो प्रसाद है कल भगवान को भोग के ऊपर लगाया जाएगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मूंग है, ड्राई फ्रूट है, जैसे फिर केला है, सफरजन है इत्यादि। इस तरह से ड्राई इत्यादि तरह के बहुत अलग अलग प्रकार के उन्होंने प्रसाद को यहाँ पे भेजा है। तो उन्हें ये परंपरा काफ़ी सालों से बरकरार रखी हुई है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से ये परंपरा वो निभा रहे अभी भी ये वो परंपरा निभाई जा रही है। अहमदाबाद में कल भगवान जगन्नाथ जी की ऐतिहासिक रथ यात्रा निकलेगी। इससे पहले आज कांग्रेस नेताओं ने मंदिर पहुंचकर रथ का पूजन किया और प्रदेशवासियों के लिए सुख शांति की प्रार्थना की। इस पूजन कार्यक्रम में कांग्रेस के शहर अध्यक्ष और स्थानीय विधायक उपस्थित रहे। उन्हें दिलीप दास जी महाराज और मंदिर प्रशासन की ओर से विशेष आमंत्रण दिया गया था। आज अमदावाद की पावन भूमि पर આવતીકાલે ભગવાન જગન્નાથજીની 148મી રથયાત્રા નીકળવા જઈ રહી છે। આજે દિલીપદાસજી મહારાજ આખા મંદિરના તમામ ટ્રસ્ટીશ્રીઓ, વહીવટકર્તાશ્રીઓ, માન્ય મહેન્દ્રભાઈ, અમારા શહેર કોંગ્રેસના પ્રમુખ બેન સોનલબેન, અમારા વરિષ્ઠ આગેવાન માન્ય હિંમતસિંહભાઈ, આ વિસ્તારના ધારાસભ્ય માન્ય ભાઈ ઇમરાનભાઈ અને તમામ કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ આગેવાનો આજે ભગવાન જગન્નાથના ચરણોમાં શીશ ઝુકાવવા આવ્યા છીએ। એમને પ્રાર્થના કરી છે કે ભગવાન જ્યારે આવતીકાલે નગરમાં બધી જગ્યાએ ભ્રમણ કરવાના છે, લોકોને દર્શન આપવાના છે, ત્યારે ગુજરાતની 7 કરોડની જનતાની સુખાકારી માટે, શાંતિ માટે, સમૃદ્ધિ માટે, પ્રગતિ માટે આજે અમે સૌએ પ્રાર્થના કરી છે। આજે એક તરફ ચોમાસાની શરૂઆત થઈ છે, અનેક વિસ્તારોમાં વધારે વરસાદને કારણે નુકસાન પણ છે। गुजरात के वडोदरा के यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई। गुजरात के वडोदरा में यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा नगर प्राथमिक शिक्षण समिति की स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा 6 से 8 की छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम आत्मशक्ति का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 5 स्कूलों में सेल्फ डिफेंस तालीम दी गई, जिसमें छात्राएं कैसे खुद की सुरक्षा कर सकती हैं इस पर जानकारी साझा की गई। आज અત્રે ઉપસ્થિત નીલમબેન હાજર રહ્યા છે યુનાઇટેડ વે તરફથી એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર છે અને તેમને આજે પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમ દરમિયાન આત્મશક્તિ પ્રોજેક્ટ લોન્ચ કર્યો છે। સમિતિની 5 શાળાઓમાં લોન્ચ કર્યો છે, એમાં એક શાળા અમારી પણ છે અને એ અંતર્ગત તેઓ અમારી કન્યાઓને સ્વરક્ષણ તાલીમ આપવાના છીએ। અઠવાડિયામાં એક સેશન કરવાના છીએ અને લગભગ 50 વિદ્યાર્થીઓને તેઓ ટ્રેનિંગ આપવાના છે કે જેથી કરીને વિદ્યાર્થીનીઓમાં સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ નિર્માણ થાય અને કોઈ પણ પરિસ્થિતિ
સામે એમને ટક્કર ઝીલવાની શક્તિ મળે. અને ટ્રેનર તરીકે અમારી સાથે શિલ્પાબેન રહેવાના છે. તો અત્રેથી શાળા પરિવાર તરફથી યુનાઇટેડ વે અને તમામ તેમની ટીમનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. સેલ્ફ ડિફેન્સ ટ્રેનિંગ જે યુનાઇટેડ વે સ્ટાર્ટ કરી છે એની ટ્રેનર છું. અમે 5 સ્કૂલોમાં આ પ્રોજેક્ટ ચલાવવાના છે, જે સ્ટાર્ટિંગ કરી દીધું છે આજથી જ કવિ પ્રેમાનંદ સ્કૂલમાં. અને આ ટેકનિક જે છે એ સિચ્યુએશનલ અવેરનેસવાળી સેલ્ફ ડિફેન્સ ટેકનિક છે, જેમાં બાળકીઓને દરેક સિચ્યુએશનમાં એનો સામનો કેવી રીતે કરી શકાય, એ રીતે પોતાની જાતને બચાવી શકાય, એના માટેની ટેકનિક્સ હું શીખવાડીશ. અને એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બાળકીઓનું આ શીખવું, કારણ કે આપણે રોજબરોજ જોતા હોઈએ છીએ કે અનગિનત કેસીસ છેડતીના, રેપના, બહુ બધા કેસીસ એવા આવે છે સેક્સ્યુઅલ અબ્યુઝના, જેને રોકવા માટે જે તે પરિસ્થિતિમાં બાળકી એકલી જ હશે અને ગુનો બનવાનો છે. તો મારું એવું ધ્યેય છે અને યુનાઇટેડ વેનું એવું ધ્યેય છે કે અમે બાળકોને જ સક્ષમ કરીશું કે કોઈ પણ જાતની આવી ઘટનાઓ જ્યારે બને તો પોતે પોતાની રક્ષા કરી શકે. યુનાઇટેડ વે ઓફ બરોડા નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની જે સ્કૂલો છે એની સાથે 2006થી જોડાયેલી છે. અને સંસ્થા ઘણા બધા કાર્ય કરે છે જેનાથી બાળકોને ક્વોલિટી એજ્યુકેશન અને એક સારું એન્વાયરમેન્ટ પૂરું પાડી શકીએ. એમાં એજ્યુકેશનલ કિટ હોય, અનાથ અને તરછોડાયેલા બાળકો જે સિંગલ પેરેન્ટ છે એમને આપવાની, સાથે સાથે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ કરવાનું, સ્ટેમ લેબ બનાવી આપવાની, સાથે સાથે આપણે ડિજિટલ ક્લાસરૂમ આપવાના, એ બધા કાર્યો તો અમે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી કરી રહ્યા છે. પણ આ વર્ષે જે આપણા વડોદરા શહેરની અંદર બાળકીઓ છે, જે છોકરીઓ છે, એને લગતા ઘણા બધા કેસીસ જોવા મળે છે, રોજ પેપરમાં વાંચવામાં આવે છે. તો એ વિષયને લઈને એવું છે કે આપણે એમને એક આત્મનિર્ભર બનાવી શકીએ. તો એ માટે આપણે સેલ્ફ ડિફેન્સની ટ્રેનિંગ આત્મશક્તિ કરીને એક પ્રોગ્રામ લોન્ચ કર્યો છે, જે ગવર્મેન્ટની 5 શાળામાં 3 મહિના માટે ચાલશે. પછી આવનાર સમયમાં બીજી 5 શાળા અમે લેવામાં આવી છે. ધીરે ધીરે કરીને ગવર્મેન્ટની જેટલી સ્કૂલો છે, ગ્રાન્ટેડ સ્કૂલો છે, બધી બાળકીઓ જે વડોદરામાં છે એ બધા સુધી આ કોર્સ પહોંચે અને એ લોકો આત્મનિર્ભર બને. આ કોર્સ દ્વારા એ લોકોને એ આત્મવિશ્વાસ એમનામાં આવશે કે સ્વબળે આપણે સ્વરક્ષા કેવી રીતે કરી શકીએ છીએ. એ લોકો એ પરિસ્થિતિમાં કદાચ સામેવાળાનો મુકાબલો ના પણ કરી શકે, પણ એ પરિસ્થિતિમાંથી કેવી રીતે નીકળી શકાય છે અને આ લાઈફ ટાઈમ માટે એમના માટે કામ આવશે. અને જેનાથી અમને આશા છે કે જે બાળકો, નાની નાની બાળકીઓ પર અથવા તો જે એડોલેસન્ટ ગર્લ્સ છે એમના સાથે જે બધા અત્યાચાર થાય છે એના पर कदाच ये लोग सक्षम थઈને ઊભા થઈ શકશે. जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में आज सुबह से ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है. जम्मू डिवीजन के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी कि इलाके में संदिग्ध हलचल की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था. तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई. दोनों ओर से भारी फायरिंग हो रही है. सुबह वहाँ एक कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश हुआ आतंकवादियों के साथ और ये अभी सर्च अभियान चल ही रहा है. अभी वहाँ काफी मौसम खराब है. फॉग हटने के बाद पूरा माजरा जो है क्लियर हो पाएगा. तो सर यात्रियों को आप क्या अपील करना चाहेंगे अमरनाथ यात्रा में आने वाले? देखिए, यात्रियों से जो हमारी अपील है वो ये है कि जैसा कि आप सभी को मालूम है, जम्मू कश्मीर एक काफी सेंसिटिव क्षेत्र है और मेरी जो उनसे डायरेक्ट अपील है वो ये है कि जो सरकारी कॉन्वॉय चलता है उस कॉन्वॉय को आप ज्वाइन करें, इंडिपेंडेंट ट्रैवल ना करें. इस सिलसिले में हम लोगों ने कल एक एडवाइजरी भी पब्लिश की है और आने वाले वक्त में ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ओर से लगातार इस बारे में लोगों को सचेत किया जाए. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी. VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही. कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार.